آج سبت کے اس مبارک دن پر آئیں ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز بعنوان روح اور دلہن کے پاس آؤ کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ خدا کی طرف سے کتاب مقدس کی تمام 66 کتابوں کو درج کروانے کے بعد انہوں نے بالکل آخر میں ایک انتباہ چھوڑی۔ ہم کتاب مقدس کے آخری باب مکاشفہ 22 کی طرف جاتے ہوئے ان کی تنبیہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم مکاشفہ باب 22 آیت 18 سے دیکھتے ہیں۔ باب 22 آیت 18۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ بڑھانا۔ آیت 19 سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے، دوسرے الفاظ میں اگر کوئی کتاب مقدس کی باتوں کو نکالے، تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہ گھٹانا۔ اگر آپ اس میں بڑھائیں گے تو آپ اپنے آپ پر آفت لائیں گے، اگر آپ نکالیں گے تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا حق کھو دیں گے۔ کیا یہ تعلیم ہمیں نصیحت نہیں کر رہی کہ نہ کچھ بڑھائیں نہ کچھ نکالیں، بلکہ دیانتداری سے خدا کی بخشی تعلیمات پر ویسے ہی عمل کریں جیسی یہ ہیں؟ اس لیے ہمیں واضح طور پر دیکھنا چاہیے کہ کتاب مقدس ابدی آسمان کی امید رکھنے والوں کو اس میں سے بغیر کچھ بڑھائے یا گھٹائے کس کے پاس جانے کی ہدایت دیتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں کے پاس یہ معیار نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ جب کوئی چیز ان کی ذاتی ترجیحات کے مطابق ہوتی ہے یا بہت سے لوگ اس کی تائید کرتے ہیں تو ان کے لیے اسے سچ سمجھنا اور اس کے مخالف کو جھوٹ یا غلط قرار دینا آسان ہوتا ہے۔ تاہم کیا ہر چیز کا اصل معیار کتاب مقدس یعنی خدا کا کلام نہیں ہے جو ہمیں ہماری نجات کے لیے بخشا گیا ہے؟ آج ہم کتاب مقدس میں بغیر کچھ بڑھائے اور بغیر کچھ نکالے معلوم کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کس کے پاس جانے کو کہا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی راہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم مکاشفہ باب 22 آیت 17 کی طرف جاتے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 آیت 17۔ روح اور دلہن کہتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بنینو، انسان کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ کتاب مقدس میں صاف طور پر درج ہے کہ روح اور دلہن کے پاس آؤ۔ پھر اگلی آیت کہتی ہے، ان باتوں میں نہ کچھ بڑھاؤ نہ کچھ نکالو۔ آپ سب، کتاب مقدس ہمیں پہلے ہی جوابات دیتی ہے کہ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا اور اپنی روحیں کس کے سپرد کرنی ہیں۔ چاہے کتنے ہی بڑے نظریات یا مفروضے سامنے آئیں، ہمیں کس کو ڈھونڈنا چاہیے؟ ہمیں روح اور دلہن کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ کتاب مقدس کا آخری کلام اور خدا کی تاکید ہے۔ آیت 17 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ یہ کہا گیا ہے کہ روح اور دلہن کے پاس آؤ اور آب حیات مفت حاصل کرو۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو آب حیات ہمیشہ کی زندگی ہے جو خدا ہمیں دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس منظر کے حوالے سے ہم یوحنا باب 4 آیت 5 سے دیکھتے ہیں۔ یوحنا باب 4 آیت 5۔ پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطعہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 4 گھنٹے کے قریب تھا۔
सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे वो उसे क्या देते? जिंदगी का पानी देता। सादा अल्फाज में कहीं तो वो उसे आबे हयात देते। ये वो मंजर है जब यीशु ने सामरिया में सुखार नामी शहर में कुनवे पर एक औरत से गुफ्तगू की थी। अगर वो जानती कि वो कौन है जो उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला, तो वो उनसे क्या मांगती? वो जिंदगी का पानी मांगती। ये बहुत अहम नुक्ता है। हम आयत 14 की तरफ जाते हैं। आयत 14 देखते हैं। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में रूह और दुल्हन बुला रहे हैं कि आओ, और कह रहे हैं कि जो प्यासा हो वो आबे हयात ले। यूहन्ना की किताब बाब 4 में यसू सुखार में एक कुनवे पर एक औरत से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर तू जानती कि कौन तुझसे पानी मांगता है तो तू उससे आबी हयात मांगती। आबी हयात में क्या क़ुव्वत है? वो हम पर इस हकीकत को उजागर करते हैं कि वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। इसलिए हम मुकाशफा बाब 22 और यूहन्ना बाब 4 से तस्दीक कर सकते हैं कि आब हयात के किरदार का हमेशा की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक है। मुकाशफा बाब 22 में ये लिखा है कि रूह और दुल्हन आब हयात देते हैं, लेकिन यूहन्ना बाब 4 में यीशु ने बयान किया है कि वो अकेले ही आब हयात देते हैं। और यूहन्ना बाब 4 में, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, ये बहुत अहम नुक्ता है। सुखार नामी शहर की सामरी औरत जो यीशु को एक आम अजनबी समझती थी, उसे याद दिलाया गया कि अगर वो जानती कि कौन उससे पानी मांग रहा है तो वो खुद उससे ज़िंदगी का पानी मांगती जो हमेशा की ज़िंदगी देता है। आएं यूहन्ना बाब 7 की तरफ जाते हैं। यूहन्ना बाब 7 आयत 37। फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, क्या जारी होगा? जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जो प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 के मुताबिक रूह और दुल्हन ऐलान करते हैं कि जो कोई हमारे पास आए और आब हयात हासिल करे। ताहम यूहन्ना बाब 4 और यूहन्ना बाब 7 में ये दर्ज है कि अकेले यीशु ही आब हयात देते हैं। हम यसायाह बाब 49 आयत 8 से देखते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और नजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहरावूंगा ताकि मुल्क को बहाल करे और वीरान मीरास वारिसों को दे। ताकि तू कैदियों को कहे कि निकल चलो, और उनको जो अंधेरे में हैं कि अपने आप को दिखलाओ। वो रास्तों में चरेंगे और सब नंगे टीले उनकी चरागाहें होंगे। आयत 10, वो न भूखे होंगे
और क्या न होंगे। न प्यासे और न गर्मी और धूप से उनको ज़रर पहुँचेगा, क्योंकि वो जिसकी रहमत उन पर है। वो कौन है? उन पर रहम करने वाला खुदा है, खुदा खुद उनका रहनुमा होगा। वह उन्हें कहाँ ले जाएगा? पानी के सूतों की तरफ उनकी रहबरी करेगा। यहाँ कौन बनी नो इंसान की रहनुमाई पानी के सूतों यानी आब हयात के मंबा की तरफ करेगा। ये हमें सिखाती है कि खुदा बनी नो इंसान की रहनुमाई करेंगे और उन्हें आब हयात के मनबा तक ले जाएंगे। आए मुकाशफा बाब 7 आयत 14 से देखते हैं। मुकाशफा बाब 7 आयत 14। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ीद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद न कभी उनको भूख लगेगी, और क्या न लगेगी, न प्यास, और न कभी उनको धूप सताएगी न गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है। बर्रा कौन है? वो यीशु हैं। वो क्या होगा? वो उनकी गल्लाबानी करेगा। वो उन्हें कहाँ ले जाएगा? और उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछे देगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये लिखा है कि बर्रा निजात पाने वालों को जिंदगी के पानी के चश्मों के पास ले जाएगा। ये सयाह बाब 49 आयत 8 से 10 में ये लिखा है कि खुदा उनकी रहनुमाई करेंगे और उनको पानी के चश्मों के पास ले जाएंगे। ये एक ही पैगाम है। मुकाशफा बाब 22 में रूह और दुल्हन पुकारते हैं कि जो प्यासा हो वो हमारे पास आए। लेकिन यूहन्ना बाब 4 और 7 के मुताबिक वो कौन है जो बनी आदम को आब हयात देता है? ये वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि वो यसू खुद हैं। मुकाशफा बाब 22 में ये लिखा है कि रूह और दुल्हन आब हयात देंगे, तो फिर दुल्हन कौन है? ज़करिया बाब 14 से देखते हैं कि किताब मुक़द्दस आब हयात के मनबा को कैसे बयान करती है। ज़करिया बाब 14 आयत 7 देखते हैं। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो न दिन होगा न रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज़ आब हयात कहाँ से जारी होगा? यरूशलेम से आब हयात जारी होगा। दूसरे अल्फाज में किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि आब हयात का चश्मा यरूशलेम है। और उस रोज़ यरूशलेम से आब हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक़ की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। यह सयाह बाब 49 और मुकाशफा बाब 7 दोनों के अल्फाज हम पर उजागर करते हैं कि खुदा खुद अपने लोगों को जो निजात पाने वाले हैं जिंदगी के पानी के चश्मा के पास ले जाएंगे। तो फिर इसका क्या मतलब है कि खुदा बाप हमें इस ज़माना में आब हयात के मनबा यरूशलेम के पास ले जा रहे हैं? इसका मतलब है कि वो हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें बीदार करेंगे और हमें बताएंगे कि यरूशलेम कौन है। इसी वजह से बाप के दस्तावेज़ ये कहा गया है कि अलीशा ने एलियाह की पैरवी की, यशुआ ने मूसा की पैरवी की, पतरस ने यीशु की पैरवी की और मैं माँ की पैरवी करता हूँ। अब वो हमें किसके पास ले जा रहे हैं? कौन आब हयात का चश्मा है? क्या ये वो मंजर नहीं है जहां वो हमें आसमानी माँ यरूशलेम के पास ले जा रहे हैं? और उस रोज़ यरूशलेम से आब हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक़ की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ,
गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। किताब मुक़द्दस हमें क्या सिखाती है कि आब हयात का मनबा कौन है? तो फिर हम गलतियों की किताब बाब 4 आयत 26 की तरफ जाते हुए देखते हैं कि यहाँ मज़कूर यरूशलेम से मुराद कौन है। गलतियों बाब 4 आयत 26। मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही यरूशलेम कौन है? हमारी माँ। 2000 साल पहले सुखार नामी शहर में यसू ने कहा, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला तो उससे ज़िंदगी का पानी मांगती। और ये बात मुकाशफा 22 आयत 17 में रूहुल कुद्स से मुताबिकत रखती है। वो खुदा रूहुल कुद्स यानी खुदा की नरसूरत है। फिर भी मुकाशफा बाब 22 आयत 17 के मुताबिक कौन आब हयात देगा? ये रूह और दुल्हन देंगे। चूंकि लफ्ज़ दुल्हन भी दरज है तो हम देख सकते हैं कि दुल्हन के हवाले से खुदा का एक और किरदार है। खुदा का एक और किरदार ये है कि वो निजात पाने वाले लोगों को आब हयात के मंबा के पास लेकर जाते हैं। दूसरे अल्फाज में हम तस्दीक कर सकते हैं कि खुदा रूहुल कुद्स का किरदार अपने फ़र्जंदों को आसमानी माँ यरूशलेम यानी दुल्हन के पास लेकर जाना है। ज़िक्रिया की किताब बाब 14 में ये लिखा है कि और उस रोज़ यरूशलेम से आब हयात जारी होगा। गलतियों बाब 4 के मुताबिक यरूशलेम कौन है? ये कहा गया है कि आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। आखिरकार खुदा बाप दूसरी बार इस ज़मीन पर आए कि सिय्योन के फ़र्जंदों को खुदा माँ से बीदार करें जो आब हयात के मनबा हैं। बाप के दस्तावेज़ में उन्होंने ये तालीम दर्ज की कि मैं माँ की पैरवी करता हूँ, और यूहन्ना बाब 13 आयत 15 का हवाला देते हुए कि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। हमें समझाया कि हमें भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। लिहाजा हम सबको खुदा की खुशखबरी की उन तालीमात की पैरवी करनी चाहिए जिनकी क़ियादत बाप और माँ कर रहे हैं। तो फिर हमें इस ज़माना में क्या करना चाहिए? आएँ यसायाह बाब 62 आयत 6 देखते हैं। ए यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ए खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रुविए ज़मीन पर महमूद न बनाए, उसे आराम न लेने दो। वो किसको कायम करेंगे? वो यरूशलेम को कायम करेंगे। गलतियों की किताब बाब 4 के मुताबिक यरूशलेम कौन है? बस वो माँ को कायम करेंगे ताकि सिय्योन के तमाम फ़र्जंद सही तौर पर उनके पास आ सकें। यसायाह बाब 62 आयत 7 में ये लिखा है कि और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रुविए ज़मीन पर, वो उसे क्या बनाएंगे? महमूद न बनाए, उसे आराम न लेने दो। यरूशलेम की दीवारों के निगहबानों को दिन रात खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें यरूशलेम के बारे में ऐलान करना, गवाही देना और मुनादी करनी चाहिए। इस ज़माना में हमें सबत का दिन, फसा, 3 वक्तों की 7 ईदें और नए अहद के तमाम कवानीन की मुनादी करनी चाहिए। लेकिन हम बाप और माँ के पास सिर्फ तभी आ सकते हैं जब हम बाप और माँ को जानते हों। चाहे किसी के पास बहुत सा इल्म ही क्यों ना हो, वो फिर भी बाप और माँ के पास यानी आब हयात के मंबा के पास नहीं आ सकते, जो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी की बरकत देते हैं। यीशु के ज़माना में भी यहूदी इस ज़मीन पर आने वाले खुदा को कबूल नहीं कर सके थे, हालांकि उन्हें शरीयत का बहुत ज़्यादा इल्म था। इस वजह से उन्हें हरगिज़ निजात नहीं बख्शी गई थी। खुदा चाहते हैं कि हम रूह और दुल्हन के पास जाएं, जो हमें आब हयात की बरकत यानी हमेशा की ज़िंदगी दे सकते हैं। और मुकाशफा बाब 22 में कहते हैं कि खुदा के कलाम में न कुछ बढ़ाओ न कुछ निकालो। रूह और दुल्हन के तालिब होकर उनके पास जाओ।
یہ وہ ہے جو خدا نے کتاب مقدس کی 66 کتابوں کے آخر میں بنی نوح انسان سے کرنے کو کہا ہے۔ دنیا روز بروز تاریک ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کتاب مقدس میں خدا کی تمام عظیم تعلیمات کو محض افسانوں یا پریوں کی کہانیوں کی طرح مانتے ہیں۔ بعض یورپی ممالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آہستہ آہستہ کتاب مقدس پر مکمل اعتقاد رکھنے سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سچائی کی تعلیم کتاب مقدس حقیقت ہے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے زمین کو خلا میں لٹکایا اور ایوب کے کام کے ذریعے آبی چکر کی وضاحت کی، جو کہ تقریباً 3500 سال پہلے درج کیا گیا تھا۔ نزدانی ایل ابواب 2 7 اور 8 سے کتاب مقدس کس قدر درست طور پر بابل سے مادی فارس، مادی فارس سے یونان اور یونان سے روم تک سلطنتوں کے عروج و زوال کی وضاحت کرتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ابھی سلطنتیں ظاہر نہیں ہوئی تھیں، خدا نے پہلے ہی واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ اس دنیا کی تاریخ کیسے انجام پائے گی۔ لہٰذا ہمیں کتاب مقدس کے تمام کلمات کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نہ کچھے بڑھائیں نہ کچھے نکالیں۔ سب کچھ یقیناً ویسے ہی پورا ہوگا جیسے یہ لکھا ہے۔ تو پھر نہ صرف ہمیں بلکہ اس عالمی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو کسے ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تھا کہ وہ روح اور دلہن کے پاس آ سکیں اور سامریا اور زمین کی انتہا تک سب لوگوں کو یروشلم کے جلال کی منادی کر سکیں۔ خدا یہاں تک کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو روح اور دلہن سے بخشا گیا آب حیات حاصل کرتے ہیں میرے فرزند ہوں گے۔ آئیں ہم مکاشفہ باب 21 سے واضح طور پر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم مکاشفہ باب 21 آیت 5 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ یہ الفاظ 100%، 1000% اور 10,000% قابل بھروسہ ہیں، تو ہمیں ان پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت 5، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں۔ وہ کون ہوں گے؟ اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو روح اور دلہن پر یعنی آب حیات کے چشموں پر ایمان لاتے اور ان کا یقین کرتے ہیں، جو انہیں آب حیات پینے کی اجازت دیتے ہیں۔ خدا نے واضح طور پر ہمیں آگاہ کیا ہے کہ وہ ان کے فرزند ہوں گے۔ مکاشفہ باب 22 ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ فرزند آسمان کی بادشاہی میں عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ باب 22 کی طرف جاتے ہیں۔ آیت 3 سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا۔ اور وہ کیا کریں گے؟ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ باب 22 آیت 1 میں ہم ان کی خصوصیات دیکھ سکتے ہیں جو عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آئیں باب 22 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا۔ فرشتے نے اسے کیا دکھایا تھا؟ آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔
और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चराग और सूरज की रोशनी के मुहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। ज़िक्रिया बाब 14 आयत 7 के मुताबिक आब हयात कहाँ से निकल कर बहता है? ये यरूशलेम से निकल कर बहता है। मुकाशवा की किताब बाब 22 में यरूशलेम का जिक्र नहीं है। ये लिखा है कि आब हयात खुदा के तख्त से निकल कर बहता है। जो लोग इसे सादगी से देखते हैं उनके लिए इसे गलत समझना आसान है, ताहम खुदा इसी बात की वजाहत कर रहे हैं। हम यिर्मयाह बाब 3 आयत 17 से देखते हैं। उस वक्त यरूशलेम किसका तख्त कहलाएगा? खुदावंद का तख्त कहलाएगा, और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी। मुकाशवा बाब 22 में ये कहा गया है कि खुदा के तख्त से निकलकर आब हयात जारी होगा, और ज़िक्रिया बाब 14 आयत 6 से 8 में ये कहा गया है कि आब हयात यरूशलेम से निकलकर बहेगा। क्या ये आयात दो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं? इनका एक ही मफहूम है। यरूशलेम कौन है? वो हमारी माँ हैं। किताब मुक़द्दस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसके बारे में बयान करती है। कभी इसे खुदावंद का तख्त कहा गया है, और कभी इसे यरूशलेम के तौर पर बयान किया गया है। आखिरकार यिर्मयाह बाब 3 आयत 17 में वाज़ेह होता है कि यरूशलेम खुदावंद का तख्त है, जो कि खुदा का तख्त है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि यरूशलेम से आब हयात जारी होगा? 2000 साल पहले जब यसू सुखार नामी शहर में एक सामरी औरत से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे जिंदगी का पानी मांगती। इस जमाना में भी यही बात सादिक आती है। अगर लोग जान लेते कि मुकाशवा बाब 22 आयत 17 में रूह और दुल्हन कौन है, तो वो बिना देर कहे रूह और दुल्हन के पास जाते और आब हयात मांगते। आब हयात एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। इसलिए हमें रूह और दुल्हन से हमेशा की ज़िंदगी मांगनी चाहिए। सिर्फ तभी हम आसमान की अब्दी बादशाही में लौट सकते हैं, यानी ऐसे जहान में जहां मौत नहीं है। मजीद बरा खुदा हमें क्या पुकारेंगे? तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो। आज हम रूह और दुल्हन की बुलाहट आ के जवाब में जमा हुए हैं। हम सबत और फसा मनाते हैं जैसा कि खुदा ने हमें सिखाया है। हम 3 वक्तों की 7 ईदें मनाते हैं और नए अहद के तमाम ज़ाबितों में बाप और माँ के साथ चलते हैं। खुदा जलाली तख्त तैयार कर रहे हैं जहां हम अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। हमें कुछ लोगों की मनगढ़ंत कहानियों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप और मैं खुदा के हमें बख्शे गए वादा पर ईमान के साथ हर रोज़ ज़्यादा मुबारक, नतीजा खीज़ और पुरउम्मीद ज़िंदगी गुजारेंगे। आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमें उम्मीद बख्शी है। क्या हमें हमेशा उन्हें शुक्र, तमजीद और हमद नहीं देनी चाहिए? अब मईशत अच्छी नहीं है और बहुत से हालात गैर मौजू हैं। हम ऐसे ज़माना में रह रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को दुश्वार और तंग कर देता है। ताहम ये ज़िंदगी सब कुछ नहीं है। क्या ऐसा है? इस आर्जी दुनिया से गुजरने के बाद आसमान की बादशाही के बारे में सोचते हुए हम उन मुश्किलात और दुखों पर गालिब आएं जिनका हम आज आर्जी तौर पर तजर्बा कर रहे हैं, ताकि हम आसमानी ख़ानदानी अराकीन बन सकें जो खुदा की अब्दी बादशाही में हमेशा की ज़िंदगी और बरक़ात का लुत्फ़ उठाएंगे।
ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس خدا یعنی ہمارے باپ اور ماں ہیں۔ ہم بھی خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس آسمان کی بادشاہی ہے۔ ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہم اکٹھے ہیں۔ اگرچہ ہر کوئی ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں صرف میں موجود ہے، پر ہمیں ہم کی دنیا میں رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ آئیں پرفضل طور پر باپ اور ماں کے دیے گئے حکم کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طاقت اور حوصلہ بنے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کی امید کو بھول جائیں جہاں ہم جا رہے ہیں، تو ہمارے دلوں میں درد، رنج اور بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ خدا آسمان کی بادشاہی میں اس سے بھی زیادہ برکات جمع کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ مستعدی سے اس کی طرف دوڑیں۔ اس کے ساتھ میں اس واز کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔